Hello everyone. Hope all of you are safe at your places. So you might be doing the revision for the topics which we covered a few days back. And now before I begin with the today's session, let's have a recap of what we did in previous session. In previous session we covered the topic SQL constraints. First of all, what is a constraint? Definition of the constraint says these are the rules which restrict the values that we enter into the various fields of a table, right? What the kind of the value we are entering, whether it can be left blank or it should be unique or some check to be put onto this value, and all these rules that restrict the entry of the data into the various fields of a relation is called the constraint. Now there were various types of the constraints. For example, not null constraint, unique constraint, primary key constraint, foreign key constraint, check constraint, default constraint, and so on. Now out of this, in previous session, we covered not null constraint, unique constraint, and the primary key constraint. Now if you remember, what is the purpose of using not null constraint? The not null constraint simply puts a restriction that that particular value in a field while inserting the record cannot be left blank. We must enter a value for a valid value for that record. But our field is there, suppose we are saying the name should not be left blank, and we have put the restriction on the name, not null constraint on the name. So while entering the record, the name value for that particular field, record cannot be left blank. The next two are interrelated, unique and the primary. Both of them restrict the duplicate value into for a record or in a field. Right. Now, where is the difference? The difference between the two is that the unique value allows the null values. That means you can leave that record, that particular field value blank. Whereas in primary key case, it cannot be left blank as well as it cannot be duplicate. So both the restrictions are there. Not null and unique, if we combine together, it gives us the same impact or the same effect as that of the primary key, because primary key means it is should not be blank and it should not be duplicate. So should not be blank means not null आ गया, should not be duplicate means unique key constant हो गया. तो यूनिक की कांस्टेंट और नॉट नल कांस्टेंट दोनों का जो इम्पैक्ट है वो अकेला प्राइमरी की के थ्रू पर्पस सॉल्व हो सकता है. Now, in today's session, we are going to cover the rest of the constraints. The first in that category is the foreign key. Now, all of you might remember that while we covered that various four major keys of the table, candidate key, primary key, foreign key, and the alternate keys, we learned that the foreign key field is a key field is a field in a table which serve as a primary key in another table, and it is used to link the or relate the two tables, right? So how to create this foreign key constant? Now purpose क्या है इसका? Foreign key is used to relate the two tables. इसके basis पे दो tables के आपस में डाटा को हम कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से टेबल में से डाटा को फेच कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं. The foreign key constant is used to restrict the action that would destroy the link between the two tables. Why the foreign key constant is put? Because it restricts the any of the action that is used to destroy the link between the two tables. Once we have set the link between the two tables, now we want that it should not be say modified or alterated without the permission or without the due course of action. Now this permission or this restriction is put with the help of the foreign key constant. Now look at these two tables, customer detail table and order detail table. Now in the customer detail table, the ID is the primary key, whereas in the order detail table, the order ID is the primary key and C underscore ID is the foreign key, which takes its value from the customer detail table. See, all the values here in this particular column, they are either matching with this column
or they can be blank, but there should be no value under this particular column that do not match with the values of this column. So here in this particular table, that is the order detail table, here the CID is our foreign key which act as a primary key in another table. Name of the field might be different. Here the name is ID, here the name is C underscore ID. It is not compulsory that name should be same, right? So it can be, it can have a different name because we are having here C underscore ID. Here the name is ID, right? Now, what does the reference integrity rule says that a foreign key constant or a foreign key field must have all the values which are matching with the values in which it act as a, और द टेबल इन विच इट एक्ट एज अ प्राइमरी की. जिस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है वहां पर उसकी वैल्यूज, ये वाली जो वैल्यूज है वो मैच करनी चाहिए. यहाँ डुप्लीकेट हो सकती है, यहाँ डुप्लीकेट नहीं होगी. दूसरी चीज, यहाँ ब्लैंक हो सकता है, यहाँ ब्लैंक नहीं होगा. लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहाँ 105 हो और यहाँ 105 ना हो. दैट इज नॉट पॉसिबल. So that is what is covered under the reference integrity rules. We have already covered the two rules, integrity rules, which is dealing with the primary key, and reference integrity rules, which deals with the foreign key. Now, how to create? So ये टेबल तो आराम से क्रिएट हो जाएगा. जब भी आप ऑर्डर डिटेल कस्टमर डिटेल टेबल क्रिएट करोगे तो उसमें आईडी प्राइमरी की हो जाएगी, कस्टमर नेम आ जाएगा, वेयर केयर उसका डेटा टाइप हो जाएगा, नोट लगा सकते हो. उसके बाद एड्रेस फील्ड में वेयर केयर आ जाएगा. ये तो सिंपली ऐसे डिफाइन हो जाएगा. बट वट अबाउट व्हेन वी क्रिएट द ऑर्डर डिटेल टेबल? ऑर्डर आईडी का प्राइमरी की बन जाएगा, इंट इसका डेटा टाइप आ गया, ऑर्डर नेम का वेयर केयर आ गया, ठीक है, नोट नल लगा सकते हो कॉन्स्टेंट. एंड जब इसको सी अंडरस्कोर आईडी को डिफाइन करेंगे, इंट का बता दिया आपने, लेकिन दोनों को लिंक कैसे करेंगे, दैट वी हैव टू सी हाउ टू create this foreign key constant, right? So observe the table carefully, note down the table so that you are aware of what all fields are there and in which table the primary key is present and to which key it is being referred to. That means किस टेबल के अंदर ये वाली की जो है वो एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रही है. तो वो कस्टमर डिटेल टेबल के अंदर प्राइमरी की एक्ट कर रही है और उसके किसके कौन से फील्ड के साथ मैच कर रही है, ये आईडी में के साथ. तो आईडी जो है वही एक यहाँ पर फॉरेन की है सी अंडरस्कोर आईडी और यहाँ पर ये प्राइमरी की है, ठीक है. तो लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट दिस. सो व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल वी कैन डू इट इन टू मैनर्स, एट टेबल लेवल और द कॉलम लेवल. सो व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल व्हेन वी गिव द कमांड क्रिएट टेबल टेबल नेम, सो हमने क्या किया, क्रिएट टेबल ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल, यहाँ से आ गया क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या था, ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल. उसके बाद parenthesis स्टार्ट की, पहला फील्ड था ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, यू कैन सी इट, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी. सो वी हैव assumed that the data type should be int and the key constant on it is primary key. उसके बाद ऑर्डर अंडरस्कोर नेम varchar 60 नॉट नल लगा दिया. अब उसके बाद बारी आ गई उस फील्ड की जो कि है फॉरेन की. लुक एट इट, सी अंडरस्कोर आईडी. पहले तो इसको सिंपली जिस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसी तरीके से करेंगे. सबसे पहले क्या किया, सी अंडरस्कोर आईडी इंट लिख दिया. यहाँ तक फिनिश कर लिया, मतलब कि हमने बता दिया कि सी अंडरस्कोर आईडी में किस टाइप का डाटा आना है, इंटीजर टाइप. उसके बाद कॉमा लगाया और फिर क्या किया, फॉरेन की. अब बताने जा रहे हैं कि इस टेबल के अंदर फॉरेन की कौन सी है और वो कौन से टेबल की कौन सी की को रेफर कर रही है. तो हमने क्या लिखा, फॉरेन की. किसको फॉरेन की बनाना है, सी अंडरस्कोर आईडी को. प्रेंसेस में डाल दिया, स्पेस देके किस टेबल को रेफर कर रही है और उसके कौन से फील्ड को रेफर कर रही है, तो उसके लिए कीवर्ड लगाया रेफरेंसेस. कौन से टेबल को रेफरेंस कर रही है, कस्टमर डिटेल को. ये वाली जो की है वो किस टेबल को कर रही है, कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल को. तो यहाँ कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल आ गया, रेफरेंसेस स्पेस देके फिर से कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल. उसके कौन सी फील्ड को रेफर कर रही थी, कौन सा फील्ड उसमें जो प्राइमरी की एक्ट कर रहा है और इस वाले टेबल में फॉरेन की है, तो ये वाला है. तो रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के बाद उस टेबल का नाम और ब्रैकेट के अंदर उसकी कौन सी की है वो आ जाएगी. सो दिस इज हाउ इट इज डन. फॉरेन की किसको बनाया आपने, सी अंडरस्कोर आईडी को. किसको रेफर कर रही है, तो उसके लिए कीवर्ड आ गया रेफरेंसेस. कौन सा टेबल है जिसको रेफर कर रही है, कस्टमर डिटेल. उसकी कौन सा एट्रीब्यूट या फील्ड को रेफर कर रही है, तो आईडी. ठीक है, तो यहाँ तक हो गया.
सपोज करो मैं टेबल क्रिएट कर चुका हूँ, मैंने फॉरेन की नहीं बनाई उस टाइम पर, अब मैं फॉरेन की बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए पता ही है कि टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए DDL की कमांड कौन सी यूज करनी है हमने, ऑल्टर। तो ऑल्टर टेबल नेम, इतना तो आना ही आना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, उसमें कांस्टेंट को ऐड करने जा रहे हैं या रिमूव करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए कीवर्ड आ गया ऐड, जैसे कि हम लोग प्रीवियस सेशन में किया था हमने, ये देखिए ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम, कौन सा कांस्टेंट है, किस फील्ड के ऊपर लगाना है। कुछ ऐसा ही हम इसमें भी करेंगे। ऐड फॉरेन की, किसको बनाना है, C_ID, किसको रेफर कर रही है, तो उसके लिए रेफरेंसेस कस्टमर डिटेल टेबल है, उसके कौन से फील्ड को रेफर कर रही है, ID। बाकी चीजें वही आ जाएगी ऊपर। ऐड के बाद, ठीक है, आप लिखो यहाँ पर, इस ऐड क्लाउज के बाद आपके पास क्या है, फॉरेन की, C_ID, रेफरेंसेस कस्टमर डिटेल ID। तो यहाँ पर भी क्या है, फॉरेन की, कौन सा फील्ड, रेफरेंसेस कौन सा टेबल, उसका कौन सा फील्ड, सेम चीज, बाकी सारा कुछ सेम। ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड, यहां तक आपने याद, ठीक है। इसको अप्लाई भी करके देखेंगे आज। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट कांस्टेंट इज द चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट का पर्पस क्या है, इट इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड और ए कॉलम बिटवीन अ सर्टेन रेंज। किसी रेंज के अंदर ही वैल्यू एंटर हो। मैं चाहता हूं कि एज एंटर कर रहे हैं आप स्टूडेंट की, आई वांट कि इट शुड बी ग्रेटर देन 4 और बिटवीन 5 and 20 और बिटवीन 5 and 30 और समथिंग लाइक दैट। ऐसे कोई भी रेंज वैल्यूज हम सेट कर सकते हैं बाय द चेक कांस्टेंट। सेकंड पर्पस क्या है, परफॉर्म द चेक ऑन द वैल्यूज बिफोर स्टोरिंग देम इनटू डेटाबेस। अगर आप गलत उस रेंज से ऊपर या नीचे कोई वैल्यू भरते हो जो उस रेंज को सेटिस्फाई ना करती हो, फुलफिल ना कर रही हो उस क्राइटेरिया को जो आपने चेक कांस्टेंट के थ्रू अप्लाई किया, अगर उस कंडीशन को फुलफिल ना करती होंगी, तो क्या करेगा वो, उसमें सेव नहीं करेगा, क्योंकि ये सेव करने से पहले उसको चेक करता है कि जो कांस्टेंट लगाया है उसको वैल्यूज जो है वो फुलफिल कर रही हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने एडमिशन नंबर डाला 93, उसके बाद मैंने दोबारा से नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए भी एडमिशन नंबर 93 डाल दिया, तो उसको सेव करने से पहले वो चेक करेगा कि जो भी वैल्यूज हैं वो जो इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, क्या उनको उनके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है, उनको ओबे कर रहा है रूल्स को या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो आपको वो रिकॉर्ड सेव नहीं करने देगा। इट्स लाइक अ कंडीशन चेकिंग बिफोर सेविंग द डाटा इनटू अ कॉलम। ओके, नाउ द एग्जांपल, suppose we are creating a table student, create table student, student id int, डाटा टाइप आ गया, उसके बाद कांस्टेंट लगा दिया उस पर नॉट नल। अब मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट की आईडी हो, किसी का भी एडमिशन नंबर हो, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, नेगेटिव में ना हो, 0 ना हो। तो उसके लिए क्या कांस्टेंट लगाया हमने, पहले तो नॉट नल लगा दिया, दैट मीन आईडी मस्ट बी एंटर्ड, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। एक और कांस्टेंट लगाया उसके साथ। तो अगर एक से ज्यादा कांस्टेंट लगाने हो तो क्या करेंगे, स्पेस डाल देंगे सिंपल, यहाँ कॉमा नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, आपने क्या लिखा, फील्ड का नाम, उसका डाटा टाइप, उसका कांस्टेंट, फिर एक और कांस्टेंट लगाना, तो स्पेस देके अगला कांस्टेंट चेक। चेक के अंदर ब्रैकेट के अंदर वो क्राइटेरिया मेंशन कर देंगे कि क्या फुलफिल करें। मैंने यहाँ लिख दिया है s_id ग्रेटर देन 0, दैट मीन जो भी आईडी है वो हमेशा आप 0 से ऊपर ही भरोगे, गलती से भी आप उससे कम नहीं भर सकते, ठीक है, ये आपको रोक देगा। नेक्स्ट कॉलम था वो हमने क्या लिया, नेम वेरकेर 60, उसको नॉट नल बनाया, देन एज इंट, सिटी वेरकेर 50, सिटी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अब रिस्ट्रिक्शन देखो, क्राइटेरिया चेंज कर रहा हूँ। अब रिस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए कि जो भी बंदा सिटी डाले वाइल एंटरिंग द रिकॉर्ड्स, ही शुड बी एबल टू एंटर ओनली ब्यास और कपूरथला, इसके अलावा कोई और सिटी एंटर ना कर पाए। तो उसके लिए हमने क्या लगाना है, सिटी के ऊपर चेक। तो चेक क्या लगाया, चेक किस फील्ड के ऊपर, सिटी इन, इन क्लाउज होता है लिस्ट के अंदर देखना, उस लिस्ट में से चेक करना कि कौन सी लिस्ट, कौन सी वैल्यूज उस लिस्ट में है, अगर वो होंगी तो अलाउ करेगा, वो नहीं होंगी तो अलाउ नहीं करेगा। तो इन क्लाउज यूज किया हमने चेक के साथ। चेक किसको किया, सिटी, और सिटी को किसमें चेक किया, इन। अब कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है तो कोट्स के अंदर ब्यास कॉमा कपूरथला, और नहीं लगाना, कॉमा सेपरेटेड जितनी मर्जी दे दो। आपने अमृतसर को भी अलाउ करना है तो ब्यास कॉमा कपूरथला कॉमा अमृतसर, आपने टिबरी को भी अलाउ करना है तो आप ब्यास कॉमा कपूरथला कॉमा टिबरी, आपने कोलकाता करना है या फिर आपने दिल्ली करना है तो आप कोई भी सिटीज का कॉमा डाल के नाम लिख सकते हो उन सारी सिटीज के जो आप उस लिस्ट में से जो यूजर यूज कर सकते हैं। इसी चीज को अगर बाद में किया जाए ऐड, तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम तो वैसा रहा, ऐड भी वैसा रहा,
कौन सा कांस्टेंट ऐड करने जा रहे हो? चेक किसके ऊपर? आईडी के ऊपर। इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इट इज सिंपल। ठीक है। देन क्रिएट टेबल, एक और लिखा हुआ नीचे टेबल, क्रिएट टेबल एड्रेस ADDRR, हाउस नंबर इंट प्राइमरी की दे दिया, सिटी वेरकेर 30 नॉट नल भी बनाया, उसको नॉट नल बना दिया। अब सिटी को ही यहाँ चेक कर लिया नॉट नल। ठीक है कि नॉट नल के बाद एक और कांस्टेंट लगाया चेक, किसको? सिटी इन, सेम काम कर रहे हैं जो यहाँ पर हुआ है, चेक सिटी इन। ठीक है, तो यहाँ पर भी नॉट नल, आगे चेक किसको? सिटी, किस में देखना है? इन एपीएस या व्यास। तो सिटी का नाम दो ही हो सकता है, इधर एपीएस या फिर व्यास भर सकते हैं, इसके अलावा कोई और भरोगे तो एरर देगा। ठीक है, कॉमा एज, उसका डेटा टाइप दे दिया इंट, प्रेंसेस क्लोज की, सेमीकोलन लगाया, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब जब भी रिकॉर्ड एंटर करना सीखेंगे हम, तो अगर इस रूल को ओबे नहीं करता होगा कोई रिकॉर्ड, तो वो सेव नहीं हो। ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, दैट इज डिफॉल्ट। Default constant provide the default value of a column when insert into the statement does not provide a specific value. कई बार आपने देखा होगा कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो अगर आप कोई भी कंट्री नहीं सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर ऑटोमेटिकली वहां पर अदर लिखा आ जाता है। तो समथिंग लाइक दैट, अगर किसी फील्ड को आप वैल्यूज नहीं भरते हो और उस फील्ड को ऐसे ही छोड़ देते हो, तो क्या करेगा? वहां पर जो भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी होगी उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। नीचे वाले टेबल में देखिए, क्रिएट टेबल कस्टमर आईडी इंट नॉट न्यू, मीन इसके ऊपर दो कांस्टेंट लगाए हमने, एक ही कांस्टेंट लगाया नॉट न्यू। अब आईडी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। द नेम वेरकेर 20 नॉट नल, सेम लगा दिया। एज इंट नॉट नल, इसको भी एज भी एंटर करनी पड़ेगी। एड्रेस कैरेक्टर टाइप का एंटर कराया 25 कैरेक्टर्स, और उसके बाद लास्ट में सैलरी है। सैलरी को आपने, क्योंकि डेसिमल पॉइंट भी अकोमोडेट करने हैं, डिजिट्स टू द डेसिमल पॉइंट भी अकोमोडेट करने हैं, एंड डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल प्लेस भी कवर करने हैं। तो दैट मीन्स ये किस टाइप की वैल्यू होगी? फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू। तो उस फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू के लिए हमारे पास डाटा टाइप क्या है? डेसिमल। तो सैलरी का डाटा टाइप क्या आ गया? डेसिमल। उसका साइज क्या दे दिया? 18,2। 18,2 का क्या मीनिंग हुआ? कि टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स कैन बी 18, आउट ऑफ विच 2 आर रिजर्व्ड for getting the fractional value, 2 digits fractional value to the right of the decimal place। ठीक है, उसका डिफॉल्ट लिखा। डिफॉल्ट के बाद कॉलम का नाम रिपीट करने की जरूरत नहीं है, स्पेस दो, कितनी वैल्यू डिफॉल्ट रखनी है आपने वो नाम, वो वैल्यू लिखो। से 5000 चाहिए मेरे को, कि 5000, अगर कोई रिकॉर्ड में सैलरी ना डाले तो ऑटोमेटिकली उसमें कितनी सैलरी आ जाएगी? 5000। ठीक है, प्राइमरी की ऊपर देना भूल गया आईडी को, तो नीचे भी दे सकते हो कॉमा डाल के। जब सारे फिनिश कर दिए, कॉमा डाल के किसको प्राइमरी की बनाना है? वो आईडी की फॉर्म में। इसी चीज को अगर हम एक बार बाकी सारा कंटेंट डिफाइन हो गया, टेबल कॉलम सारा कुछ सारा इंसर्ट हो गया है, तो उसके बाद अगर मुझे याद आया कि नहीं मैं तो डिफॉल्ट वैल्यू देना भूल गया सैलरी, तो उसके लिए फिर टेबल के स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू जब टेबल क्रिएट किया था तब लगानी थी, अब टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए कमांड फिर से वही है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, आगे क्लोज, अब क्या आंसर लगा दिया? मॉडिफाई, कौन सा फील्ड? सैलरी, उसका डाटा टाइप, न्यू डाटा टाइप देना, यहाँ पर सेम रखा हमने, डेसिमल 18,2, आप डिफॉल्ट सेम रख सकते हो। उसके बाद स्पेस देके उसके ऊपर डिफॉल्ट कांस्टेंट लगा दिया, फिर से स्पेस देके कितनी डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है वो वैल्यू। अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो कम से कम 5000 डल जाएगा सैलरी। ठीक है, जीरो नहीं होगी उसकी, या 5000 से कम नहीं होगी। सिमिलरली ऑल्टर टेबल, कस्टमर, ऑल्टर कॉलम, सैलरी, ड्रॉप, डिफॉल्ट। अगर आप इस कांस्टेंट को रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से हटा दो। ऑल्टर कॉलम, अब कॉलम कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ऑल्टर कॉलम, सैलरी, कॉलम सैलरी, सैलरी वाले कॉलम को ऑल्टर किया और ड्रॉप कर दिया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कांस्टेंट उसके ऊपर से हटा। ठीक है, और यू मे आल्सो गिव अ कमांड, प्योर कमांड टू रिमूव अ कांस्टेंट लाइक दिस, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, आगे ड्रॉप, आगे कौन सी की ड्रॉप करनी है? फॉरेन की। ठीक है, ये नोट करेंगे, धीरे धीरे हम प्रैक्टिकली भी सारा करके देखेंगे। अब आ जाते हैं डीडीएल कमांड्स की। हमारे पास 5 डीडीएल कमांड्स थी, क्रिएट, ऑल्टर,
ठीक है। उसके बाद ट्रंकेट, देन ड्रॉप, देन रीनेम। ठीक है। तो क्रिएट कमांड हम कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड इज यूज्ड फॉर ऑल्टरेशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टेबल स्ट्रक्चर। टेबल के कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर रहा, उसको चेंजेस नहीं कर रहा, टेबल के स्ट्रक्चर को और टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना या फिर ऑल्टरेशन करना। The various uses of the alter command are like this: to add a column to the existing table, हमारे पास ऑलरेडी कोई टेबल है, डाटा भी फिल कर चुके हैं, उसमें एक और कॉलम ऐड करना, मुझे सपोज करो मुझे डेट्स ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है सभी, तो मैं बाद में उसको एंटर कर सकता हूँ। तो रीनेम एक एग्जिस्टिंग कॉलम, एक टेबल के अंदर कोई कॉलम है, उसका नाम मैंने नेम रखा हुआ है, अब मैं उसका नेम चेंज करके उसको रीनेमिंग करता हूँ स्टूडेंट नेम, तो वो रीनेमिंग में आ गया। टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ एनी कॉलम और मॉडिफाइड साइज, पहले मेरे पास कैर था, अब मैं वेर कैर बनाना चाहता हूँ, या फिर मेरे पास पहले वेर कैर था विद 30 साइज, अब मैं उसको वेर कैर विद 40 साइज बनाना चाहता हूँ, वो भी काम कर। ऑल्टर टेबल इज यूज टू ड्रॉप अ कॉलम, यह किसी कॉलम को टेबल से हटाने के लिए भी यूज होता है, परमानेंटली रिमूव। देन टू ऐड कांस्टेंट टू अ कॉलम, किसी कॉलम को हम कांस्टेंट लगाना भूल गए, बाद में लगाना है, तो ऑल्टर टेबल नेम, उसके बाद उस पर कांस्टेंट लगा सकते हैं, यहाँ जैसे डिफॉल्ट कांस्टेंट लगाया है, और यही नहीं, इसके बाद प्राइमरी की कांस्टेंट भी लगा सकते हैं। देन अब इसके बाद है हाउ टू ऐड, ये वाले काम देखेंगे कैसे ऑल्टर कमांड तक आज करेंगे हम, कि आप चेक करना हमने कि ऑल्टर कमांड कैसे काम करती है ना। ऑल्टर कमांड इज यूज टू, ये सारे काम है ऑल्टर कमांड के, एक एक करके देखते हैं ऑल्टर कमांड कैसे यूज होती है। फर्स्ट वन इज यूजिंग ऑल्टर कमांड वी कैन ऐड अ कॉलम टू द एग्जिस्टिंग टेबल, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है, और मैंने सारे फील्ड तो दे दिया लेकिन एड्रेस देना भूल गया। नाउ how to modify the structure of the table so that I can accommodate the address field, अपना जो एड्रेस फील्ड है उसको भी उसमें डाल सकते। तो ऑल्टर टेबल नेम, इतना तो पक्का ही है कमांड, ऑल्टर टेबल नेम, उसके बाद ऐड, कौन उस कॉलम का नाम क्या रखना है जो ऐड करने जा रहे हो, यूनिक नेम होना चाहिए, ऑलरेडी टेबल के अंदर अगर है तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऑल्टर टेबल नेम ऐड, उस फील्ड का नाम बता दिया एड्रेस, फिर उसका डाटा टाइप कैर 55, द above command will add a new column address to the student table। सिमिलरली आप एक से ज़्यादा भी कॉलम ऐड कर सकते हो कॉमा सेपरेशन से, जैसे फादर नेम ऐड किया, मदर नेम ऐड किया, तो फादर नेम का जो भी कॉलम का नाम रखा वो रख लिया, उसका डाटा टाइप एंटर कर दिया, कॉमा डाल के मदर नेम का नाम रख लिया, उसके बाद मदर नेम दे दिया कॉलम, उसके बाद वेर कैर कर दिया, एंड देन उसको डाटा टाइप दिया। तो एक से ज़्यादा भी आप कॉलम ऐड कर सकते हो एट ए टाइम बाय यूजिंग द ऑल्टर टेबल कमांड एंड द ऐड क्लॉज। देन मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉलम, आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम है, आपने उसका डाटा टाइप बढ़ाना है, काम नहीं कर सकते क्योंकि डाटा ऑलरेडी होगा उसमें। तो सपोज करो मेरे पास टेक्स्ट नेम के लिए टेक्स्ट रखा हुआ है, मैंने 20 का लिया था, लेकिन अभी नाम बहुत बहुत लेंथी भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अनदर कमांड कैन बी यूज विच इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉलम। उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, ऑल्टर टेबल नेम, अब ऐड क्लाउज की जगह क्या लग जाएगा, मॉडिफाई क्लाउज। ठीक है, पुराने कॉलम का नाम आएगा सबसे पहले, ठीक है, मॉडिफाई कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, फिर उसका क्या डेटा टाइप आप मॉडिफाई करना चाहते हो वो रख सकते हो, जैसे मॉडिफाई एड्रेस वेर कैर 30, आपने पिछली बार जो एड्रेस के साथ किया तो वेर कैर या कैर 55 लिया, अब मैंने सिमिलर टाइप का क्या ले दिया, वेर कैर 30, और अल्टर टेबल नेम, देन मॉडिफाई कॉलम, अब आप कमांड दोगे मॉडिफाई कॉलम्स या कॉलम, ठीक है, कौन से फील्ड को मॉडिफाई करना चाहते हो, एड्रेस के, उसके नीचे जो भी उसका डाटा टाइप होगा वो आ जाएगा या साथ में आ जाएगा, उसका साइज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मुझे कॉलम रिमूव करना है, मेरे पास अनवांटेड आ गया एड्रेस, मुझे नहीं चाहिए था, गलती से आ गया मेरे पास उस टेबल के अंदर, एड्रेस रिमूव करना है, तो वो भी है ऑल्टर टेबल नेम ड्रॉप, आगे ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम, ठीक है। सिमिलरली ऑल्टर टेबल नेम ड्रॉप एड्रेसेस, ठीक है, अगर आपने एड्रेसेस नाम का कोई कॉलम बनाया है, उसको सिर्फ रिमूव करना है, तो वो भी एक रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो
we comes to the end of the today's session here. Hope all of you are maintaining the proper notebook. Please confirm me the completion of the notebook by having a small video of 20 to 25 seconds, so that I must come to know that you are doing your regular work. Accordingly, I will put your attendance. Thank you.